और तस्वीरें हम आपको इस वक्त सीधे दिखा रहे हैं वहां मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेलीगेशन स्तर की वार्ता। बड़ी उपलब्धियां हैं, इनसे हमें भविष्य में और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। चेन्नई समिट में अब तक हमारे बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण विचार विनिमय हुआ है। वुहान स्पिरिट ने हमारे संबंधों को एक नया मोमेंटम और ट्रस्ट दिया। आज के हमारे चेन्नई कनेक्ट से दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया दौर शुरू होगा। एक्सेलेंसी, अब मैं आपको प्रारंभिक स्टेटमेंट के लिए आमंत्रित करता हूं। It is my great pleasure to come to this beautiful city of Chennai at your invitation and have this second informal summit with Your Excellency. I want to especially thank you for the fact that since the moment that we arrived, we have been immersing or overwhelmed by this kind of gracious hospitality and thoughtful arrangements that the Indian side has made. Me and my colleagues have felt that very strongly. And we are really overwhelmed by your hospitality, and we feel that Mr. Prime Minister, the Indian government, and the state of Tamil Nadu, and the people here cherish friendly sentiment toward the Chinese people, the Chinese government, and we really feel your sincere welcome to us during this visit. So this will be a very memorable experience for me, for us, and will have a far-reaching impact for the Chinese people. I saw that the Chinese media has published a lot of articles about China-India relations, about the friendly relations between our two countries. Mr. Prime Minister, last year we held the first informal summit. Actually, this initiative was put forward by you, Mr. Prime Minister, and I agree that it is a good idea. Indeed, the Wuhan summit ushered China-India relations into a new stage of healthy and steady development. For the past 1 year or so, the informal summit continues to produce visible progress. We have deeper strategic communication, more effective practical cooperation, more diverse people-to-people and cultural exchanges, and we have a closer cooperation on multilateral occasions. What has happened has proved that we have made the right decision to have this kind of informal summit, and we can well continue with this form of meeting. China and India are each other's important neighbor, and we are the only two major countries, each with over 1 billion people. To maintain and grow China-India relations is a firm policy of China. Yesterday and earlier today, Mr. Prime Minister, as you said, you and I have engaged in candid discussions as friends in these heart-to-heart discussions on bilateral relations. We have had really in-depth engagement and good discussions. I am happy and I really enjoy our conversations so far. So I look forward to further discussions in an in-depth manner with you in the full delegation discussion and make further plans for bilateral relations. I may follow up on the proposals and issues discussed yesterday. I will make some responses. I'm sure that our discussion today will further bring forward our relations. Thank you.
एशिया के दो महाबलियों की मुलाकात 54 मिनट तक ये महामुलाकात चली। कश्मीर पर जो रार है वो कितनी के लिए साफ हो पाई है इसको अभी साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वुहान स्पिरिट से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के चेन्नई कनेक्ट तक आखिर क्या बदला क्या नहीं बदला, इसमें समय की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि समय ही साबित कर पाएगा कि ये स्पिरिट और दमदार हुई या इसमें कुछ कमी रह गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त इस डेलीगेशन स्तर की वार्ता की। खास बात यह कि एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के बाईं तरफ और ठीक दाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके ठीक बगल में विदेश सचिव गोखले साहब बैठे हुए हैं। रोहित विश्वकर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातचीत में वुहान स्पिरिट की बात की तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चेन्नई कनेक्ट का जिक्र किया। ये कितना ज्यादा कनेक्ट कर पाया इन दोनों देशों को, दोनों राष्ट्राध्यक्षों को? देखिए, वो कितना कनेक्ट कर पाया ये तो दूसरी चीज है। सबसे अच्छी बात ये निकल कर आ रही है कि शी जिनपिंग ने खुले तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आइडिया जो अनौपचारिक मुलाकातों का था, जिसे हम लोगों ने नए तरीके से शुरू किया है, ये सबसे बड़ी चीज है और उसकी उन्होंने तारीफ की कि ये बहुत ही अच्छी पहल थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसके बाद भारत और चीन एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। और इस बार उन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहेंगे। जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आ रही है वो ये है कि भारत और चीन एक दूसरे के मुद्दों को लेकर के संवेदनशील रहेंगे। यानी अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे अचल से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि भारत और चीन एक दूसरे का दिमाग पढ़ने के लिए, एक दूसरे की सोच जानने के लिए ये अनौपचारिक मीटिंग करते हैं और ये बहुत जरूरी है। ये दूसरी अनौपचारिक मीटिंग थी भारत और चीन के बीच में। अब जाकर के ये जो चीज सामने आ रही है, जो दोनों की बातचीत हुई है, उसमें कहा वुहान ने भारत और चीन के रिश्तों में नया वुहान स्पिरिट ने बहुत नई बढ़ोतरी की, दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। और अब जब चीन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर के विश्व शांति में बढ़ेंगे और एकमात्र दुनिया के ऐसे पड़ोसी भारत और चीन हैं जो दोनों 1 अरब से ज्यादा की जनसंख्या रखते हैं, यानी दोनों एक इशारों में ये बात कह दी कि करीब करीब दुनिया की आधी आबादी के आसपास जनसंख्या दोनों देशों में रहती है और वो दोनों देशों को एक साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा इस अनौपचारिक मुलाकात से पहले एक लेख आया था चीन के मुखपत्र में, चीन की सरकार के, जिसमें कहा गया था कि भारत के बिना एशिया के, नए एशिया की, 21वीं सदी के एशिया की कल्पना नहीं की जा सकती। और ये बात उसी दिशा में जाती है। सबसे अच्छी चीज ये रही कि कम से कम दोनों ये बात कहने को तैयार हो रहे कि झगड़ों से बात नहीं बनेगी, बल्कि एक दूसरे से मिलकर करना होगा। चेन्नई कनेक्ट जो शब्द इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो हम थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चेन्नई कनेक्ट की बात कही, वो सबसे जरूरी चीज थी कि वुहान स्पिरिट के बाद अब चेन्नई कनेक्ट। यहां तक कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अपने वक्तव्य में तमिलनाडु की जनता का और चीन के साथ उनके संबंधों का वर्णन किया, उनकी तारीफ की। कुल मिलाकर के दोनों ने बस ये इस समिट से जो निकल के सामने बात आ रही है, औपचारिक बयान से पहले ये कहा जा सकता है कि दोनों देश काफी खुश हैं एक दूसरे को समझकर, जानकर, और एक कम से कम एक बात पर एक मत है कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और उस बातचीत के लिए अनौपचारिक बातचीत बहुत जरूरी है। औपचारिक समझौतों के लिए अनौपचारिक तौर पर ये मिलना और एक दूसरे की नीयत, सोच, विचार और आगे के रास्तों को समझना बहुत जरूरी है। ये कम से कम राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। यानी ये माना जाए रोहित जी की चाओ लाई से लेकर अब शी जिनपिंग तक चीन की समझ में भी बहुत बदलाव आया है और चीन अब इस तरह की बातें करने के लिए अब हिचकिचाता नहीं है।